Hello, good morning students. Welcome back to our mathematics class, and we are doing chapter number 1, that is numbers and numerations. Till today we have done recall of numbers, numericals, number names, skip countings, greater number, smaller number, equal numbers, ascending order and descending order. And in our previous class we had done tens and ones. Okay, now today's our topic is hundreds, tens and ones. Students, we have learned how to write tens and ones. You are given a box of chocolates, say 10 chocolates in a box, okay, and single 2 more chocolates if you are given, then how many total chocolates do you have? 10 plus 2, that is 12. Now today we will learn the topic of hundreds. Here are some 10 boxes of 10 sticks in each box, okay. A 10 sticks box contains 10 sticks in it. There are such 10 boxes over here as well as over here. So how many in total sticks are there over here? 10, 10, 10, 10, 10, like this. 10 boxes contains 10 sticks each. So it is 100 sticks in total. Okay. Now over here also there are some boxes containing 10 sticks each. So 10, 10, 10, 10, 10, 10. Now I'll take only 2 boxes for our example. If I'm taking 2 boxes, then 10 and 10, it means this is 20 sticks in total. Yes. Now we will start with single sticks. Then 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 single sticks. So how we will write them all together? 100, 20 and 5. So I will write over here 125 total sticks. Yes, 125. Again an example. There are 10 sticks over here. If I take 5 boxes of 10 sticks over here, then it becomes 50 sticks. Okay, and single sticks 1, 2, 3, 4. So 154. I will write over here 154. Are you all getting? Again an example. 110 sticks of these. So 110 and 1 over here. So 111. After 10 what comes is 11. Okay students, are you all getting? Now we will switch over to our textbook. Now students, open your mathematics textbook, Grow with Numbers. In that, open page number 13. Which page number? 13. First of all students, put today's date over here. And let's start with our today's topic. What is our today's topic? 100 tens and ones. 10 tens make 100. We write it as 100. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया कि एक बॉक्स में अगर 10 स्टिक्स होती हैं और हमारे पास ऐसे 10 बॉक्स हैं, 10 बॉक्सेस हैं, तो टोटल कितनी स्टिक्स हुई हमारे पास? 100. उसी तरह यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और हर एक बॉक्स में 10 पेंट ब्रशेस हैं. कितने हैं? 10. चलो काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो ऐसे हमारे पास बॉक्स कितने हैं? चलो अब वो काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. यहाँ पर ऐसे 10 बॉक्सेस हैं. ठीक है, तो टोटल पेंट ब्रशेस हमारे पास कितने हुए? एक बॉक्स में अगर 10 पेंट ब्रश हैं, तो ऐसे 10 बॉक्सेस में कितने टोटल पेंट ब्रशेस हुए हमारे पास? 100. ओके, समझ में आया बच्चों? नाउ काउंट द फॉलोइंग बंडल्स ऑफ पेंट ब्रशेस एंड राइट द नंबर. क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है कि आपको ये कितने बंडल्स हैं वो काउंट करने हैं. कितने बंडल्स हैं वो काउंट करने हैं. ठीक है, अब पहले एक बार देख लेते हैं कि इस वाले बॉक्स में भी कितने पेंट ब्रशेस हैं. चलो डीपली काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10.
तो यहाँ पर जैसे है वैसे ही यहाँ पर भी एक बॉक्स में कितने पेंट ब्रशेस हैं? 10। ठीक है, तो ऐसे हमें काउंट करना है कि कितने बंडल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10। ओके, अब नीचे आते हैं। There are dash bundles। हमने ऊपर बंडल्स काउंट किए, तो कितने बंडल्स हैं? 10 बंडल्स हैं। कितने? 10। अब काउंट द नंबर ऑफ पेंट ब्रशेस इन ईच बंडल। यहाँ पर क्या बोला है कि एक बंडल में कितने पेंट ब्रशेस हैं? There are dash brushes in each bundle। तो हमने अभी ही काउंट किया, कितने थे बच्चों? 10। ठीक है, therefore ये क्या है? therefore 10 tens are 100। क्या बोला? 10 tens यानी कि 10 टाइम्स, यानी कि एक बॉक्स में अगर 10 ब्रशेस हैं तो ऐसे 10 बॉक्सेस में कितने ब्रशेस होंगे? 100। कितने होंगे? 100। ठीक है, अब 10 tens and 0 ones। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो पहला वाला टॉपिक किया था टेंस और वंस का, उस टेंस और वंस में 10 टाइम्स टेंस है और वंस में क्या है? 0। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। See how we can show it on an abacus। अब यहाँ पर आपको एक abacus दिया गया हुआ है जिसमें हमने पहले क्या किया था? टेंस और वंस किया था, और अब हम क्या करेंगे? हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 100 दिखाना है तो आप कितने बिट्स लगाओगे? हंड्रेड्स के कॉलम में सिर्फ एक ही बिट लगाना है। कितने लगाने हैं? सिर्फ एक। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 14। इसमें क्या है? नंबर्स ऑन एबेकस। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको नंबर्स जो एबेकस पर दिए गए हैं उनको काउंट करके यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। राइट द नंबर शोन ऑन ईच ऑफ द गिवन एबेकस। एक आपको एग्जाम्पल की तरह दिया गया है, इसमें क्या है? हंड्रेड्स, टेंस और वंस। 100 वाले में कितने बिट्स हैं? 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 100 है। तो यहाँ पर क्या है? देखो, 100 वाले में 1 है। फिर अब हम टेंस का काउंट करते हैं, उसमें क्या है? 1 2 3। तो ये कितना हुआ? 3 0 30 हुआ, क्योंकि ये टेंस वाला है तो 3 0 30 हुआ। तो यहाँ पर टेंस की साइड पर हम क्या लिख देंगे? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। और अब वंस का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो मतलब वंस की साइड पर हम क्या लिख देंगे? 5। तो टोटल ये क्या हो गया बच्चों? 135। कितना हुआ? 135। तो वहीं पर आपको बॉक्स में दिया गया है 135। समझ में आ गया बच्चों? अब एक हम ट्राई करते हैं। चलो, यहाँ हंड्रेड्स में कितने बिट्स हैं बच्चों? 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 है या 200 है? 100 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। फिर टेंस की साइड पर कितने बिट्स हैं? 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 100 लिखेंगे या 10 लिखेंगे? 10 लिखेंगे। पर उसका हम सिर्फ अभी एक ही लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि वंस में 0 नहीं है, वहां पर एक बिट तो है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? 1। तो अब हम इसको रीड करते हैं, तो इसका क्या होगा? 111, क्योंकि 10 के बाद क्या आता है? 11। अगर यहाँ पर टेंस में एक बिट है तो मतलब कि वो 10 हुआ, और यहाँ वंस में एक बिट है तो क्या मतलब हुआ? 10 + 1। तो वो कितना हो जाएगा? 11। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 111। समझ में आया बच्चों? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 100 में कितने बिट्स हैं? 1 है। कितना है? 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
100. That means it is 100, not 200 or 500. ओके, अब टेंस का काउंट करते हैं. टेंस में कितने हैं? 1 2 3 4. कितने हैं? 4. तो ये क्या हो जाएगा? 40 होगा. यस, तो हम यहाँ पर 40 नहीं लिखेंगे पर सिर्फ 4 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 4. अब वंस का काउंट करते हैं. वंस में क्या है? 1 2 3 4. कितने हैं? 4. तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे. अब एबेकस में दिए गए बिट्स को पढ़ते हैं. क्या है ये? 144. क्या है? 144. तो हमने भी यहाँ पर वही लिखा है. क्या लिखा है? 144. समझ में आया बच्चों कैसे करना है? अब जो बाकी के हैं वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. यहां पर भी आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें पेंट ब्रशेस के बंच हैं. ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं. एक बॉक्स में कितने पेंट ब्रश हैं? 10. तो ऐसे हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. यहाँ पर 10 बॉक्सेस हैं जिसमें हर एक बॉक्स में 10 पेंट ब्रशेस हैं. तो हमारे पास टोटल कितने पेंट ब्रशेस हुए? 100. कितने हुए? 100. अब यहाँ पर जो है वो टेंस का आएगा, बट ऑब्वियस है यहाँ पर आपको एबेकस में दिखता है कि पहला वाला 100 का आएगा, दूसरा वाला टेंस का आएगा और एंड में वंस आएगा. तो उसी तरह अगर यहाँ पर 100 दिया गया है तो यहाँ पर टेंस ही होगा. तो अब हम देखते हैं कि टेंस में कितने हैं. 1 2 3 एंड 4. 4 बॉक्सेस हैं जिसमें हर एक बॉक्स में 10 पेंट ब्रशेस हैं. तो टोटल कितने हुए? 40 पेंट ब्रश हुए. यस, तो मतलब ये 100 है और ये 40 है. अब लास्ट वाला वंस का देखते हैं. उसमें कितने हैं? 1 2 3. ये सिंगल पेंट ब्रश हैं. तो कितने हैं? 3 पेंट ब्रशेस हैं. कितने हैं? 3. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? 143. ये कैसे हुआ? 100 40 और 3. तो ये कितना हो जाएगा? 143. कितना हो जाएगा? 143. अब यहाँ पर देखो वर्ड्स में दिया गया है 100 प्लस 4 10s यानी के 40 प्लस 3 1s यानी के 3. तो कितना होता है? 143. अब नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों. काउंट एंड राइट द फॉलोइंग. यहां पर आपको काउंट करके लिखना है. पहला वाला देखते हैं. यहां पर एक बंच है, एक पोटली जैसा है. ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है? 100. तो इसका मतलब है ये सिर्फ 100 है. ओके, यहां पर उसी तरह से पोटली जैसा ही है, एक बंच जैसा है. ठीक है, उसमें कितना लिखा है? 10 और 10. तो 2 बार 10 मिलाकर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 20. कितने होते हैं? 20. तो ये 100 है और ये 20 है. तो अब वंस में कितना है? 1 2. ये तो सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 कॉइन्स है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 10s लिखेंगे. 10s के कितने हैं? 2 है. 1 एंड 2. तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. अब वंस में कितने हैं? 1 एंड 2. तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 122. समझ में आया बच्चों कैसे लिखा? यहाँ पर 100 में कितने हैं? 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा. तो ये क्या हो गया? 100. अब 10s के कितने हैं? 1 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 10s लिख दिया. और वंस में कितने हैं? 1 एंड 2 अगेन. तो हमने यहाँ पर 2 1s लिख दिया. तो ये सब मिलाकर क्या होता है? 122. आई होप कि ये हमारा आज का टॉपिक आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा. तो आपको जो बाकी के 4 हैं वो होमवर्क में करने हैं. So students, I hope you all have understood our today's topic of hundreds, tens and ones. Okay, we have also done our exercise and some I have given you as your homework. So you have to complete that, and after this video you will be also getting some worksheets to do. If you have any doubt, we will solve it later on. Till then, bye bye.